Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss blood cells and cell-like bodies. So let's move to the classboard. So dear students, the second component of blood, that is blood cells, and cell-like bodies. So first of all, I'm going to classify them. So the blood cells and cell-like bodies, they are divided into three parts. The first part, that is called as erythrocytes. Which are called as red blood cells, or which are also abbreviated as RBCs. Clear? So that's the first category, the first component of the blood cells. Clear? The second component which we are going to discuss, it will be the thrombocytes. Clear? Or which are also called as the platelets. And actually these are the cell-like bodies. Ye erythrocytes, they are cells, but cell-like bodies, they are the thrombocytes. Clear? Yeah, which we call as platelets. And the third type is leukocytes. Leukocytes or white blood cells or WBCs. So dear students, I'm going to classify first of all these. The leukocytes, they are further subdivided into two categories, into granulocytes and agranulocytes on the basis of the presence of granules in their cytoplasm. And the granulocytes, they are further divided into three categories.
neutrophils. Number 2, basophils. Number 3, the eosinophils. Okay. While the agranulocytes, they are divided into 2 categories. ये 2 categories हैं इनकी. Monocytes and the lymphocytes. Okay. And the lymphocytes, they are further divided into 3 main branches, 3 main categories. The natural killer cells, or NK cells. Okay. Number 2 are the B lymphocytes. And number 3 are the T lymphocytes. Okay. And the B lymphocytes, they produce plasma clone cells, while the T lymphocytes, they are further divided into different categories, into T cytotoxic, T delayed hypersensitivity, and the T helper cells. आपको याद आ गया dear students? T helper cells were the main conductor of our immune system. तो ये क्लासिफिकेशन है ल्यूकोसाइट्स की, जो आगे चलकर हम डिटेल के साथ इसको भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स की तरफ. द रेड ब्लड सेल्स और द आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द मोस्ट इनोमरस सेल्स इन द ब्लड. पहली चीज़, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखेंगे. मोस्ट numerous cells in the blood. ब्लड में सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं की है. तो अगर हम इसकी काउंट की बात करें, if we talk about the count, so in males के अंदर, अच्छा मेल्स के लिए एक मेडिकल साइन इस्तेमाल होता है, इसको याद रखें, आगे चलकर काम आएगा आपके. सो दिस इज द साइन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स. इसी तरह से फीमेल्स के लिए भी होता है. क्लियर? सो मेल्स के अंदर आरबीसी की जो काउंट है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 5 to 5.5 million per cubic millimeter per mm क्यूब. और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 1000 mm क्यूब मिल के 1 ml बनाते हैं. ml का पता ना आपको, ml मिलीलीटर्स.
एक छोटा जो शैम्पू वाला साशे होता है वो 5 ml का होता है, तो 1 ml के अंदर 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो तब जाकर 1 ml बनता है। तो ये 1 मिलीमीटर का यानी 1 ml का 1000th पार्ट है, और उसके अंदर 5 से 5.5 मिलियन यानी 50 से 55 लाख आरबीसीज हैं। और अगर फीमेल्स की बात करें, सो दे हैव 4 to 4.5 million RBCs per cubic millimeter. Clear? So that is its count. Now, if we talk about the shape, so dear students, shape RBCs की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. It is biconcave in shape. Biconcave, disc-like, आपने बटर स्कॉच की टॉफ़ी देखी है, बटर स्कॉच जो कैंडी होती है, ठीक है। सो उस एग्जैक्टली उसी शेप के होते हैं ये तकरीबन, ये देखिएगा लाइक दिस, सेंटर से ऐसे डिप्रेस्ड, साइडों से उभरी हुई। ये मैंने आपको इसका साइड व्यू दिखाया है, और अगर इसको ऊपर से ऐसे देखेंगे तो इट इज़ लाइक दिस, ये साइडें इसकी उभरी हुई होती हैं और सेंटर से पिच की हुई होती है, इस तरह से पिच की हुई, बटर स्कॉच की तरह की, ठीक है। सो एक ये कनकेव किसे कहते हैं, जो डिप्रेशन वाली जो सरफेस होती है, तो एक कनकेव ये और एक कनकेव नीचे वाली साइड पे, सो इट बिकम्स बाय कनकेव, और डिस्क की तरह की शेप है इसकी, क्लियर। और इट्स डायमीटर is 8 माइक्रोमीटर्स। एक नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल होता है, यानी एरिथ्रोसाइट जिसे हम कहते हैं, उसका डायमीटर होता है 8 माइक्रोमीटर्स, क्लियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर लाइफ स्पैन, व्हाट इज देयर लाइफ स्पैन, यानी कि इनकी उम्र कितनी होती है। सो अप्रॉक्सीमेटली एक रेड सेल, it lives approximately 4 months, 4 महीने, और 120 days, 120 दिन। After that, the RBCs are degraded। आपको याद है मैंने इसके जब जॉन्डिस समझाया था तो उसके अंदर ये डिटेल के साथ बताया था इसकी डिग्रेडेशन। सो आरबीसीज आर डिग्रेडेड इन द लिवर एंड स्प्लेन, क्लियर। स्प्लेन जो है इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रेव यार्ड ऑफ कब्रिस्तान है ये आरबीसीज का है। हर रेड ब्लड सेल जो मर रहा है वो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, फिर उसके बाद वो लिवर में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ। And if we talk about its composition, so it has hemoglobin। तो डियर स्टूडेंट्स, कितनी हीमोग्लोबिन है हम पहले कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। अबाउट 95%। रेड ब्लड सेल के अंदर 95% तो सिर्फ हीमोग्लोबिन ही है। हम इसको चैप्टर 13 में भी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद हैं सॉल्ट्स, प्लस कुछ सॉल्ट्स हैं, प्लस इसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सा एंजाइम है इसके अंदर फेमस, हमने पढ़ा है। कौन सा एंजाइम पढ़ा हमने, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, याद है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल में। और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद हैं कुछ प्रोटीन्स, ऑल्सो सम प्रोटीन्स आर देयर इन द साइटोप्लाज्म। सो दैट इज द कंपोजिशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देयर फॉर्मेशन और सिंथेसिस
if we talk about their synthesis, कहाँ पर बनते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि एज वाइज, क्लियर। तो इसको हम एज की वाइज कैटेगराइज करते हैं सिंथेसिस को। इफ यू टॉक अबाउट द एम्ब्रियोनिक लाइफ, सबसे पहले शुरू वहीं से करते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ मतलब जब बच्चा माँ के पेट में था, फिर उसके बाद चिल्ड्रन, फिर उसके बाद हम देखते हैं एडल्ट्स में, क्लियर। तो तीनों कैटेगरीज में देखेंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट द एम्ब्रियोनिक लाइफ, द आरबीसीज दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड स्प्लीन। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो तब उसके लिवर और स्प्लीन जो है वो आरबीसीज बनवा रहा है। चिल्ड्रन, ऑल बोन्स, तमाम हड्डियां, खास तौर पर लॉन्ग बोन्स जो है वो बना रही होती हैं, क्लियर। ऑल बोन्स, स्पेशली द लॉन्ग बोन्स, जैसे ह्यूमरस, जैसे रेडियस अल्ना, जैसे फीमर, जैसे टिबिया फिबुला, ठीक है। और एडल्ट्स में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फिर ये जो लॉन्ग बोन्स हैं इसके ऊपर वो जो है फैट्स आ जाने की वजह से वो इनएक्टिव हो जाती है और फिर वहाँ पर नहीं बनती, बल्कि फिर द शॉर्ट बोन्स, जो बॉडी की शॉर्ट बोन्स और जो मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं वहाँ पर ये बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल the skull and the sternum and vertebra and the ribs, clear। तो वहाँ से इनके सिंथेसिस होगी आरबीसीज की, क्लियर। तो ये डिफरेंट लाइफ्स के अंदर हमने इसको याद रखना है। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिए बहुत ही अहम चीज़ कि ये वाहिद ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड है, जो कि ए न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। द ओनली मैमेलियन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में सबसे मेजर डिफरेंट ही न्यूक्लियस का था, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल दैट लैक्स न्यूक्लियस। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर इस बात को कंफ्यूज नहीं करना, जब इसकी सिंथेसिस हो रही होती है उस वक्त इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये ब्लड के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, बोन मैरो में आमतौर पर, वहाँ पर इसके स्टेम सेल्स मौजूद हैं, तो वहाँ से इसकी सिंथेसाइज होने के बाद जब ये ब्लड के अंदर आ जाता है तब ये कहलाता है एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट जो होता है वो मैच्योर रेड सेल है और डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है, वो शट ऑफ हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता चलता हूँ, याद रखिएगा हमेशा के लिए। हमारी बॉडी में हम एक तरह की जो कैटेगराइजेशन है सेल्स की वो इस तरह से करते हैं, ब्लास्ट एंड साइट। इसको याद रख लीजिए, सेल्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। ब्लास्ट्स, एक वो सेल जिसके साथ लगता है ब्लास्ट और एक वो सेल जिसके साथ लगता है साइट, ये प्रीफिक्स सेल, क्लियर। ब्लास्ट का मतलब है ये इमेच्योर सेल है और साइट का मतलब है कि ये मैच्योर सेल है, क्लियर। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में पढ़ा था आपने, लाइक ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, वो इमेच्योर बोन सेल्स, एंड ऑस्टियोसाइट द मैच्योर बोन सेल्स, ठीक है। इस तरह से एरिथ्रोब्लास्ट, तो जब ये एरिथ्रोब्लास्ट होता है, जब इमेच्योर होता है, उस वक्त इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जब ये एरिथ्रोसाइट बन जाता है तब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहते, क्लियर। So initially RBCs, लेकिन कौन सा, blast have nucleus, but when it matures
जब ये मैच्योर हो जाता है मीन्स इट बिकम्स एरिथ्रोसाइट। इट लैक्स न्यूक्लियस। क्लियर? तब उसमें न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, जो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ये आरबीसीज बनते हैं बोन मैरो के अंदर, उस प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्लियर? द प्रोसेस by which RBCs are formed is called erythropoiesis. Erythropoiesis. Clear? ये भी मार्क कर लीजिएगा। और dear students, then the thrombocytes. Thrombocytes, ये basically these are the cell-like bodies. ये है actually cell-like bodies, मतलब सेल नहीं है, ये सेल की तरह के ही कुछ बॉडीज हैं। उसकी रीजन क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स या जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ये एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स बोन मैरो के अंदर एक सेल बनता है। द बोन मैरो have a cell with large nucleus, उसके अंदर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा सेल होता है, called, उस सेल को कहते हैं megakaryocyte. It is called as megakaryocyte. The platelets are the broken fragments of megakaryocyte. तो जब मेगाकैरियोसाइट जो है वो उसके छोटे छोटे हिस्से टूटेंगे तो वो जो टूटे हुए हिस्से हैं वो कहलाएंगे प्लेटलेट्स। क्लियर? और इफ़ यू टॉक अबाउट देयर काउंट, तो डियर स्टूडेंट्स इनकी काउंट एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर होती है 2.5 लाख 250,000 पर मिलीमीटर क्यूब। क्लियर? इन एन एडल्ट। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, देयर लाइफ स्पैन दैट इज ऑफ अबाउट 7 to 8 डेज, 7 से 8 दिन सिर्फ, यानी कि 1 हफ्ते के लाइफ स्पैन है इनका। और इनका फंक्शन, और डियर स्टूडेंट्स आरबीसीज का फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको अलहदा से मेंशन नहीं किया, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 में भी डिटेल से पढ़ाया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में ये इनका मेन रोल है। सो द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज, अब प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन दैट इज प्लाज्मा सॉल्युबल प्रोटीन, ये प्लाज्मा सॉल्युबल प्रोटीन है। सो द प्लेटलेट्स they convert this fibrinogen into fibrin, which is plasma insoluble, plasma insoluble प्रोटीन है। और फिर ये फाइबर्स क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये फिब्रिन फाइबर्स द फाइब्रिन फाइबर्स एनमैश आरबीसीज, ये आरबीसीज को जकड़ेंगे एंड फॉर्म्स टेम्पररी seal
over wounded surface. तो जहाँ पर ज़ख्म होगा, जहाँ से कट लगा, वहाँ पर ये पहुँचेंगे, वहाँ पर प्लेटलेट्स भी और फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेंगे फिब्रिन के अंदर. फिब्रिन वैसे जाल सा बन जाएगा, ठीक है. इस तरह से ये फाइबर्स, इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, इस तरह से जाल सा बना देंगे, नट सा बना देंगे, और इसके अंदर फिर आकर आरबीसीज फंसना शुरू हो जाएंगे, एनमैश हो जाएंगे, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि वो एक आर्जी तौर पर प्लेटलेट प्लग बन जाएगा जो कि ब्लीडिंग को रोक देगा. सो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ दिस द थ्रोम्बोसाइट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ल्यूकोसाइट्स को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.